So today we'll be doing Act 3, Scene 2. ये scene कहाँ हो रहा है? This scene takes place in Belmont and in a room in Portia's house. So अगर question आता है, so you will write कि the scene takes place in Belmont, तो भी सही है. In Portia's house, तो भी सही है. Portia's mansion, palace, whatever you want, you can write. Not whatever you want, like something related to what I said. इसमें से कुछ भी लिख सकते हो. Portia, I pray you, tarry, pause a day or two before you hasten. So Portia says, now what has happened? कौन-कौन है scene में? Bassanio है, Portia, Graciano, Nerissa and Attila. So as you know, if you have forgotten, तो हुआ क्या है कि Bassanio has gone to Belmont किस लिए? To get married To to marry Portia, Portia. to try his luck, right? As one of the rivals, as one of the suitors, वो Belmont गया है किस लिए? Portia से शादी करने के लिए. So now Portia and Bassanio, they happen to meet, right? तो Portia क्या कह रही है? And Bassanio wants to choose the casket, right? Bassanio क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो casket choose करें, and so at least he is relieved of that stress and tension जो उसको है अपने फ्यूचर के लेके कि whether he will be able to marry Portia or he will not be able to marry Portia. तो ये जो स्ट्रेस में वो रह रहा है, तो वो उस स्ट्रेस से क्या हो, रिलीफ महसूस कर सकते, राइट? So what does Portia say? I pray you, tarry. Tarry means wait. So Portia says that I request you. Pray you means I request. I request you that you please wait for a day or two. Means please, it's my humble request that don't be in such a mighty hurry to choose a casket. Right? इतनी जल्दबाजी में मत रहो casket choose करने के लिए. Please एक दो दिन रुक जाओ. Before you hazard. Hazard means take risk. इससे पहले कि ये जो risk है casket choose करने का, before you take the risk of choosing the casket, please wait a day or two. क्यों? In choosing wrong, I lose your company. क्यों? क्योंकि अगर तुमसे गलत casket choose हो गया, if you are unable to choose the right casket, अगर गलती से भी तुमने गलत casket choose कर लिया, तो क्या हो जाएगा? I will lose your company. तो मेरा साथ छूट जाएगा तुम, right? Why? Because you remember one of the conditions क्या था casket choose करने? There were 3 conditions. पहला था कि if you choose the wrong casket, तो you will not be able to marry any woman throughout your life. Second condition क्या था कि if you make a choice of the wrong casket, you will not tell the secret of the casket to anyone. And the third one was that you will leave that place immediately, right? You will leave Portia's house immediately अगर गलत casket choose किया. So these were the 3 conditions. तो वही Portia कह रही है कि अगर तुमने गलती से भी, because Portia doesn't want to lose Bassanio. Portia also is in love with Bassanio. तो वो ये नहीं चाहती कि Bassanio जल्दी से वहां से चला जाए. So that is why she is trying to dissuade him. वो उसको dissuade कर रही है, बना रही है कि तुम गलती से भी गलत casket, मतलब ये casket choose करने वाला टाइम काम को ही linger on करते हैं, राइट? इसको थोड़ी आगे पे टाल देते हैं. इतनी जल्दी क्या है casket choose करने की, राइट? क्योंकि अगर तुमसे गलत casket choose हो गया तो फिर तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा. Therefore forbear a while. इसलिए I'm saying, इसलिए I request you कि please, forbear means please have patience for a while, just relax for a while, right? Don't be in a mighty hurry to choose the casket. इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से choose कर लेना. There is something tells me, but it is not love. I would not. Portia, see, in those days, women were not so open. वो love of के बारे में they were not supposed to talk so openly, right? Especially all these well-groomed women, जो decent women थी, they were not supposed to talk about love, right? And neither were they supposed to be the first ones to confess their love. So Portia, being a well-groomed or अच्छे घर की, she is a woman. She is a woman belonging to a good family. So obviously she is not going to go and openly talk about her love.
So that is what she says. There is something tells me. There is something inside me. मेरे अंदर कुछ ऐसा है. But it is not love. But I want to tell you, I want to warn you कि इसको तुम ये मत समझना कि I am in love with you. I would not lose. So there is something inside me. मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी कंपनी नहीं खोना चाहती, मैं तुम्हारा साथ नहीं खोना चाहती. लेकिन वो जो कुछ है मेरे अंदर, that is not love. Don't mistake it to be love. And you know yourself. Hate counsels not in such a way. और तो तुम तो खुद ही समझदार हो, तुम खुद जानते हो कि हेट तो काउंसिल मींस एडवाइस देना. So hate ऐसी counsel तो देता नहीं है. So now you understand on your own. So she is kind of indirectly confessing her love, right? कह रही है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं खोना चाहती. आई वॉन्ट टू बी इन योर कंपनी. मैं तुम्हारी कंपनी बहुत रिलिश करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है तुम्हारी कंपनी. लेकिन वो क्या है, उसको तुम लव मत समझना. मतलब एक बार वो ये भी कह रही है कि तुम उसको ये मत सोचना कि आई एम इन लव विद यू. बट कुछ ऐसा है वो, और तुम खुद कुछ ऐसा है जो ऐसा मुझे कह रहा है कि तुम मुझसे अलग मत हो. फिर वो कह रही है नेक्स्ट लाइन में, बट हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी. लेकिन अब तुम खुद ही समझदार हो कि इट इज नॉट लव बट इट इज नॉट हेट ऑल्सो. क्योंकि हेट क्या है, ऐसा सजेशन तो देगा नहीं. अगर आप किसी से हेट करते हैं, इफ यू डिसलाइक द पर्सन, इफ यू हेट अ पर्सन, तो ऑब्वियसली आप ये तो चाहेंगे नहीं कि वो इंसान आपके पास ठहरे काफी देर तक. सो दैट इज व्हाट शी सेज कि हेट तो ऐसी एडवाइस देगा नहीं. अगर मेरे अंदर हेट्रेड है किसी के लिए, तो वो मुझे ये सलाह तो डेफिनेटली नहीं देगा कि ये इंसान मेरे पास रुका रहे काफी समय तक. सो हेट काउंसल्स एंड नॉट इन सच अ क्वालिटी. सो हेट will not definitely advise me in such a manner. Hate to definitely ऐसी advice नहीं देगा. And I know that it is not love either. But lest you should not understand me well. Lest means in case. या मतलब क्या, लेकिन अगर तुम मुझे ठीक से नहीं समझ पा रहे हो. See, she is confusing matter. She is saying that I don't love you and hate ऐसी सलाह देता नहीं जैसा मुझे फील हो रहा है. Hatred में आदमी ऐसा फील नहीं करता. So what is she trying to do? She is trying to confuse the scenario. So that is why she says कि but lest you should not understand me well. Well means अगर तुम यहाँ पे ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, in case you are not able to understand me properly, and yet a maiden hath no tongue. Or I would like to tell you कि maiden hath no tongue means maidens are restricted. They cannot express themselves freely. Means I cannot come directly to you and say whatever I feel for you. मेरे अंदर की जो फीलिंग है, मैं यहाँ पे आके सीधे तुम्हारे सामने खड़े होके आई कैन नॉट अटर एवरीथिंग. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग. बट थॉट आई वुड डिटेन यू हियर. बट थॉट आई वुड डिटेन यू हियर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर. लेकिन आई कैन नॉट एक्सप्रेस वट एवर आई फील फॉर यू. बट स्टिल I cannot stop myself. I am free. Maidens are restricted from expressing, but thought is free. I can think, and so I am thinking that I should restrict you here for a month or two. कि मैं तुमको 1-2 महीना यहाँ पे रोक लेती before you venture for me. Venture means to take risk, right? कोई risky काम करना is venturing. So she says कि before you venture for me. इससे पहले कि तुम मेरे लिए जाके ये रिस्क लो, इससे पहले कि तुम मेरे लिए जाके ये खतरा लो. ऑब्वियसली ये खतरा क्या है? खतरा इज मेकिंग अ चॉइस ऑफ द कैस्केट. कैस्केट चूज करना एक खतरनाक काम है. खतरनाक नॉट इन द लिटरल सेंस, लेकिन खतरनाक कैसे? क्योंकि अगर गलत कैस्केट चूज हो गया तो क्या हो जाएगा? पोर्शिया विल नॉट बी एबल टू मैरी द पर्सन whom she wants to. तो दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि अगर ऐसा हो गया तो गलत कैस्केट चूज हो गया तो I will lose your company. And so that is why I am what I am thinking. जो मैं सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि तुम 1-2 महीना रुक जाओ और फिर कैस्केट चूज करो. क्योंकि थॉट मेरा फ्री है. My tongue has restrictions. Being a maiden, I cannot speak out clearly, but my thought is free. So सोच सकते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है ये ख्याल कि यू शुड नॉट गो, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू. दिस इज द अदर थिंग.
So I am free to think, and so I am thinking about you, about not losing your company. I could teach you how to choose right, but then I am forced. Now Portia says कि मैं तुमको सिखा सकती हूँ. Means Portia obviously knows the secret of the casket. Portia को पता है कि किस casket में क्या है, right? She knows कि which casket contains her picture. क्योंकि जिस casket में Portia की picture है वही तो सही casket है ना. That is the casket which these suitors are supposed to choose. The casket which contains the picture of Portia. So that is what she says कि मैं तुमको ये सिखा तो सकती हूँ. I can teach you how to choose right. How to choose right means how to make the right choice. How to choose the right casket means अगर मैं तुमको ये secret reveal कर दूँ कि कौन सा casket सही है, तो then you will be able to choose right. And I can do that because I know which is the right casket. But then I am forced. लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ, right, तो मैं क्या करूंगी? अपनी oath को violate करूंगी. Means she must have taken an oath in front of her father कि वो किसी को casket का राज नहीं बताएगी. So that is why she says. So that is why she doesn't want to tell Bassanio which casket is the right one. क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो she'll be forsworn, means she would be violating her oath. माने वो उसने जो कसम खाई थी, उसने जो शपथ दी थी, वो उसके अगेंस्ट जाएगी. So will I never do, and I never want to do this. Means I never want to be forsworn. मैं कभी भी उस oath को violate नहीं करना चाहती, उस कसम को नहीं तोड़ना चाहते जो कि मैंने खाई थी, that I will not reveal the secret of the casket to anyone. So may you miss me, but if you do, you will make me wish a sin. So then she says कि अब क्योंकि मैं तुमको बता नहीं सकती, बिकॉज मैं कसम नहीं तोड़ना चाहती, मैं अपनी ओथ नहीं तोड़ना चाहती, तो मैं तुमको सही कैस्केट बता नहीं सकती, बताऊंगी नहीं. लेकिन अगर मेरे सही कैस्केट ना बताने में तुमसे गलती हो गई और तुमने गलत कैस्केट चूज कर लिया, तब मुझे ये लगेगा सो मे यू मिस मी. तो तब क्या हो जाएगा? अगर तुमने गलत कैस्केट चूज कर लिया, इफ आई डोंट टेल यू, एंड इन दैट केस, ऐसी सिचुएशन में मेरे ना बताने पे अगर तुमसे गलती हो गई और तुमने गलत कैस्केट चूज कर लिया, बट इफ यू डू, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? यू विल मेक मी विश अ सिन. तब मैं ये सोचूंगी कि मैंने ये सिन कर लिया होता, मैंने ये पाप कर लिया होता, मैंने ये गलती कर ली होती कि मैंने तुमको सही कैस्केट बता दिया होता तो सही होता, राइट? कि मैं तब मुझे ये लगेगा कि मैंने ये वाला सिन क्यों नहीं कमिट किया, ऑफ ब्रेकिंग माय ओथ, ऑफ ब्रेकिंग दैट प्रॉमिस जो मैंने लिया था कि मैं किसी को कैस्केट की बारे में नहीं बताऊंगा, राइट? तब अगर तुमसे गलती हो गई, एंड इफ यू लूज मी, और तुमने लाइक इफ वी आर नॉट टुगेदर, इफ यू डोंट गेट मैरिड, अगर तुमने गलत कैस्केट चूज कर लिया, तब मैं ये बैठ के सोचूंगी कि मैंने ये गुनाह क्यों नहीं किया, मैंने ये क्राइम, ये सॉरी नॉट क्राइम, मैंने ये सिन कमिट करके तुमको सही कैस्केट के बारे में क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दी. देन आई विल बी थिंकिंग दैट आई हैड बीन फोर्सफुल, कि अगर मैंने फोर्स ऑन कर लिया होता, अगर मैंने अपनी ओथ तोड़ दी होती तो ज्यादा अच्छा. Bishrew your eyes, they have overlooked me and divided. So bishrew your eyes means your eyes have confounded me, और बहुत देर से you were, see Portia was so beautiful, तो क्या होगा? Bassanio must be looking at him, right? काफी देर से Bassanio उसको देख रहा होगा, ठीक है? Bassanio must be admiring her beauty. So that is what she says कि your eyes have overlooked me and divided me. So she means to say कि तुम्हारे eyes ने क्या कर दिया है? They have cast a spell upon me. They have mesmerized me. एकदम तुम्हारी आंखें जिस तरीके से, the way you are looking at me, they are your eyes have almost spellbound me. I am spellbound by your eyes. तुम्हारे जो looks हैं उनकी वजह से मैं क्या हो गई हूँ? बिल्कुल spellbound हो गई. And divided me. और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि that now I am divided into two. तुम्हारी आंखों ने इस तरीके से स्पेल बाउंड किया मुझे कि now I am divided into two. One half of me is yours. अब मैं दो हिस्सों में डिवाइड हो गई हूँ और मेरा एक हिस्सा क्या है? तुम्हारा है. Other half yours. Means एक हिस्सा तो तुम्हारा है और दूसरा वाला भी तुम्हारा है. अब दूसरा वाला कैसे तुम्हारा है? Mine own, I would say.
बट इफ माइन देन योर्स। तो एक तो तुम्हारा हो गया है, मीन्स ये जो तुम्हारी आंखों ने मुझे स्पेल बाउंड कर दिया है, मेस्मराइज कर दिया है, बिल्कुल मैं तुम्हारी आंखों के जादू में आ गए हैं, सम्मोहन में आ गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है, आई हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू, मेरे दो हिस्से हो गए हैं, उसमें से एक हिस्सा तुम्हारा है और दूसरा वाला जो है वो भी तुम्हारा। अब दूसरा वाला कैसे उसका है, दिस इज व्हाट पोर्शिया हैज एक्सप्लेन। शी सेज माइन ओन आई वुड से, उसने कहा मैं कहूंगी कि मेरा है, बट इफ माइन देन योर्स, लेकिन क्योंकि जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, इसलिए दूसरा भी किसका हुआ, दूसरा भी तुम्हारा हुआ। माने वो सिर्फ कहने के लिए मेरा है, लेकिन क्योंकि जो भी कुछ भी मेरा है, एनीथिंग विच बिलोंग्स टू मी बिलोंग्स टू यू बिकॉज आई बिलोंग टू यू, राइट। सो क्या है कि क्योंकि माइन ओन आई वुड से, बट इफ माइन देन, क्योंकि जो भी चीज मैं ओन करती हूँ वो तुम्हारी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, आई एम कंप्लीटली योर्स। दिस इज व्हाट पोर्शिया वांट्स टू से, कि मैं पूरी तरीके से आई बिलोंग टू यू नाउ, आई एम सो स्पेल बाउंड बाय योर आईज दैट आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ टू यू, आई कंप्लीटली बिलोंग टू यू, यू कंप्लीटली possess me, अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। दिस इज व्हाट पोर्शिया इज ट्राइंग टू से। एंड सो ऑल योर्स, इस तरीके से क्या हो गया, आई एम कंप्लीटली योर्स। Oh, these naughty times put bars between the owners and their rights. लेकिन देखो ये क्या है, दो मन से from my soul मैं क्या हूँ, I belong completely to you, I belong entirely to you. But these naughty times का मतलब क्या है यहाँ पे, bad times, ये जो बुरा समय चल रहा है, ये जो हमारी सिचुएशन बुरी है, ये जो हमारे हालात हैं, सिचुएशन क्यों बुरी है, बिकॉज क्या हो गया है, एक कंडीशन हैज बीन इम्पोज। तो ये जो बैड टाइम चल रहा है बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑफ चॉइस ऑफ कास्केट, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, पुट बार्स बिटवीन द ओनर एंड देयर राइट्स। बार मींस ऑब्स्टेकल्स, इसने क्या कर दिया है, बाधा ला, राइट, हर्डल्स ला दिए हैं, ऑब्स्टेकल्स ला दिए हैं, किस लिए, बिटवीन द ओनर एंड देयर राइट्स। माने तुम ओनर तो हो मेरे, यू ओन मी एंड आई से दैट आई बिलोंग टू यू, लेकिन इस ये जो कंडीशन है, ये जो टाइम ने ये कंडीशन इम्पोज कर दी है ऑफ द चॉइस ऑफ कास्केट, इसकी वजह से क्या हो गया है, you in spite of being the owner you still don't have any right over me, means though you are the owner, though I have surrendered myself completely to you, पूरी तरीके से मैंने खुद को समर्पित कर दिया है तुमको, but still you don't have any right of possession over me. क्यों, क्योंकि I am still not married to you, and why am I still not married to you, because you have not made a choice of the casket yet, right? तो ये खराब समय है, ये हालात इतने खराब है हमारे कि दो यू आर द ओनर, दो यू आर माई ओनर, यू आर माई मास्टर, बट स्टिल यू डोंट ओन मी, व्हाई, बिकॉज ऑफ नॉट मेकिंग अ चॉइस ऑफ द कास्केट येट। सो इस तरीके से क्या हो गया है, ओनर और ओनर के अधिकारों में, ओनर के राइट्स के बीच में क्या आ गया है, खराब समय आ गया है, जिसने एक बार खड़ा कर दिया, जिसने एक हर्डल, एक ऑब्स्टिकल लाके खड़ा कर दिया। देयर इज अ हर्डल बिटवीन द ओनर एंड हिज राइट्स। दिस इज क्लियर। लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट, नॉट आई। उसने कहा और ऐसे हालात के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए आई एम नॉट टू बी ब्लेम, right? So because this situation, this bad time, this naughty time has not been is not something which is done by me, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फॉर्चून जिम्मेदार है। सो इसकी सजा भी फॉर्चून को मिलनी चाहिए। लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट, नॉट आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, आई स्पीक टू लॉन्ग। देन शी रियलाइज्ड दैट शी हैज बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो काफी देर से बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। उसको इतना बोलने के बाद ये रियलाइज हुआ, तो उसने कहा मैं काफी देर से बोल रही हूँ अब, बट टिस टू पीस द टाइम। लेकिन तुम सोचोगे कि मैं काफी देर से बोल रही हूँ, दैट आई टॉक अ लॉट, इतनी देर से मैं अकेले बात करती जा रही हूँ, तो तुम सोच सकते हो ऐसा कि दैट आई एम वेरी टॉकेटिव, बट मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, शी हैज अगेन गिवन द, बट टिस टू पीस द टाइम। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं टाइम को पास कर सकूं। दिस इज जस्ट टू स्ट्रेच द टाइम, मैं समय को खींच रही हूँ। क्यों खींच रही हूँ, टू एक इट एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लाइन। क्यों, ताकि मैं
थोड़ी देर और ऐड करती जाऊं और इसको खींचती जाऊं, स्प्रेड करती जाऊं इस समय को, टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन. इलेक्शन मीन्स चॉइस. मैं इसलिए ऐसा करती जाऊं ताकि तुमको मैं उतनी देर के लिए अवॉइड कर सकूं कास्केट चूज करने से. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेच द टाइम so as to avoid you from making a choice of the task. जितनी देर मैं यहाँ तुमको अपनी बातों में उलझाए रहूंगी, तुमसे बातें करती रहूंगी, तुमसे बोलती रहूंगी, उतनी देर तुम मेरे साथ रहोगे, उतनी देर तुम मेरी कंपनी में रहोगे और you will not make a choice of the task. So that is the reason why I am talking so much. So Bassanio says, let me choose, for as I am, I live upon the land. तो बसानियो क्या कहता है कि प्लीज लेट मी चूज. क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्रेजेंट कंडीशन समझो, जैसी मेरी प्रेजेंट कंडीशन है, आई लिव अपॉन द रैक. अब यहाँ पे बसानियो का क्या मतलब है कि दैट यहाँ पे रैक का मतलब है टॉर्चर. मीन्स मैं जिस कंडीशन में हूँ, मैं जिस सिचुएशन में हूँ अभी, आई एम एक्चुअली अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ टॉर्चर. बसानियो को क्या टॉर्चर हो रहा है? बिकॉज वो भी स्ट्रेस में ना, कि कास्केट चूज कर ले तो फिर डिसाइड हो जाए उसका फेट कि क्या है उसके फ्यूचर में, what the future has in store for him, right? तो और जितना डिले करेगा उतना ही देर वो क्या होगा, उसको वो टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, वो टेंशन फेस करनी पड़ेगी कि पता नहीं क्या होगा. सो बसानियो की थिंकिंग क्या है? पोर्शिया से अलग है. पोर्शिया की थिंकिंग क्या है कि जितना टाइम हम लोग साथ में बिता सकते हैं बिता ले, बिफोर टेकिंग द रिस्क ऑफ चूजिंग अ कास्केट. बसानियो क्या सोच रहा है कि नहीं, बसानियो कह रहा है नहीं, प्लीज मुझे अलाउ कर दो चूज करने के लिए कैस्केट. क्यों? क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट कंडीशन है, फॉर एज आई एम मीन्स as my present condition is, I live upon the rack. मैं एक्चुअली काफी पेन में हूँ इस वक्त, मैं एक्चुअली काफी स्ट्रेस में हूँ, मैं काफी टेंशन में. पोर्शिया अपॉन द रैक बसानियो देन कन्फेस. अब पोर्शिया ने इस रैक को क्या किया, डिफरेंट मीनिंग में ले लिया. रैक क्या है यहाँ पे? रैक इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर. पुराने जमाने में क्या होता था? रैक वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर. उसमें क्या होता था? एक फ्रेम टाइप का होता था. ऑल दीज क्रिमिनल्स के लिए यूज होता था. इट वॉज अ फ्रेम काइंड ऑफ अ थिंग, और उसमें लोगों को स्ट्रेच कर दिया जाता, राइट? जब तक कि वो क्या करते थे, अपना ट्रीजन या नॉर्मली व्हेन दे द क्रिमिनल दे डिड समथिंग अगेंस्ट द स्टेट, तो वो अपना जब तक वो ट्रीजन और क्राइम जो होता था उसको कन्फेस नहीं करते थे, क्राइम ऑफ ट्रीजन को कन्फेस नहीं करते थे, तब तक उनको देवर स्ट्रेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट. लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता था, उनको खींच के बांधा जाता था. ठीक है, बड़ा सा फ्रेम टाइप का होता था. देवर स्ट्रेच्ड, दीस क्रिमिनल्स देवर स्ट्रेच्ड. सो पोर्शिया ने उसका डिफरेंट मीनिंग लिया. ठीक है, बसानियो का मीनिंग क्या था? टॉर्चर. उसने ले लिया टॉर्चर वाला इंस्ट्रूमेंट जिसमें लिटा के टॉर्चर किया जाता. अपॉन द रैक बसानियो देन कन्फेस. सो रैक में स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है? द क्रिमिनल्स आर सपोज्ड टू कन्फेस. So Portia says, okay, so you are upon the rack, means you want to say that you are being tortured. अब तुमने torture use ही कर लिया है, and you are already upon the rack. You have been stressed upon the stretched upon the rack. So now confess. Now it's your job कि अब तुम confess करो. What treason there is mingled with your love? अब तुम confess करो कि कौन सा treason है, कौन सा crime है, crime of disloyalty है क्या तुम्हारे अंदर with your love, means your love is not pure. ये कन्फेस करना चाहते हो तुम? यही क्राइम किया है तुमने? क्योंकि इफ माई लव इज अ टॉर्चर फॉर यू, लव कब टॉर्चर होगा? जब उसमें कुछ गलत भावना हो, जब उसमें कोई क्राइम होगा, जब आप व्हेन यू आर नॉट फेथफुल, देन ओनली लव विल बी अ टॉर्चर. सो दैट इज व्हाट पोर्शिया सेज. सो पोर्शिया इज ट्राइंग टू पुल हिज लेग. वो कह रही है व्हाट रीजन देयर इज मिंगल विद योर लव. सो नाउ प्लीज टेल मी कि कौन सी डिसलॉयल्टी है यहाँ पे तुम्हारे लव से जुड़ी हुई. टेल मी व्हिच डिसलॉयल्टी इज attached or which disloyalty is associated with your love, because तुमने ही torture की बात की, that you are being tortured. So Bassanio says, none but that ugly treason of mistrust. Mistrust का माने यहाँ पे क्या है? doubt. उसने कहा और कोई, my love is very pure, there is nothing, there is no disloyalty attached to my love. सिर्फ एक को छोड़ के. treason अगली ट्रीजन का मतलब है अगली फीलिंग यहाँ पे. सो मेरे लव में और कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, सिर्फ
एक मिसट्रस्ट का माने क्या है? डाउट। कौन सा डाउट है उसको? कि आई मे लूज द लव ऑफ माई लाइफ, मीन्स आई मे नॉट बी एबल टू मैरी। सिर्फ यही एक डाउट है मेरे अंदर, इसके अलावा और कुछ। दिस इज द ओनली डाउट which makes me fear the enjoying of my love. सिर्फ यही एक डाउट है ऐसा जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू फुल्ली एंजॉय द कंपनी ऑफ माई लव। मीन्स दो आई एम विद यू आई शुड बी वेरी हैप्पी, लेकिन ये जो मेरे अंदर डाउट है कि शायद मैं तुमको खो दूं, शायद यू मे नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, शायद मैं तुमसे शादी ना कर पाऊं, शायद आई विल नॉट बी एबल टू मैरी यू। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या कर रही हैं? ये मुझे restrict कर रही हैं from enjoying my love. It's because of these things that I am not able to completely enjoy my love. ये जो डर है मेरे अंदर, ये जो मेरे अंदर डर है तुमको खो देने का डर, इसकी वजह से I am not able to fully enjoy my love. There may as well be amity in life. Twin snow and fire as treason and my love. So now he says, now he compares his love to different. He says that there cannot be friendship and life between snow and fire. Snow and fire में क्या हो सकता है? Friendship हो सकती है, कभी नहीं हो सकती. Twin means between. So amity means friendship. So there cannot be friendship in life. अगर snow और fire साथ में हैं तो दोनों की life नहीं हो सकती. एक ही survive करेगा. Either fire will burn that snow and it will be changed into vapor, वो वहां से disappear हो जाएगा, और अगर snow ज्यादा powerful होगी तो वो क्या कर देगी? Fire की life को खत्म कर देगी. So it's not possible to have that friendship in life should exist between snow and fire. Snow और fire में friendship और life possible नहीं. And treason in my love. जिस तरीके से स्नो और फायर में फ्रेंडशिप एंड लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से डिसलॉयल्टी और लव में और मेरे लव में विच आई हैव फॉर यू फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं. मीन्स अगर यहाँ पे मेरा लव है तो सिर्फ मेरा लव ही सर्वाइव करेगा. मीन्स मेरा लव, आई कंप्लीटली लव यू, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट. माने मेरे लव के सामने आई लव यू सो मच, आई लव यू टू द एक्सटेंट कि इसमें ट्रीजन और डिसलॉयल्टी और बीइंग अनफेथफुल ऐसी चीजों की कोई गुंजाइश है ही नहीं. बिकॉज देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन ट्रीजन एंड माई लव, बिटवीन डिसलॉयल्टी एंड माई लव. सब हिंदी में ही बोल रहे हैं. Hey, Portia, but I fear Bilingual. Hey, but I fear you speak upon the rack, where men enforced to speak in. So Portia says, I still don't trust. I feel कि जो तुमने अभी कहा कि there cannot be any friendship between disloyalty and love for you, जो तुमने बोला अभी, मुझे इसमें लग रहा है कि तुम अब you speak because of fear. Because अभी तुमने कहा कि you are upon the rack. Upon the rack means you are under the pressure of torture. अब तुम उस torture के pressure में ये confess कर रहे हो that you love me. Means क्या होता है, आदमी डर के मारे तो कुछ भी confess कर लेता है ना. So Portia is just trying to pull his leg. उसको परेशान कर रही है इससे. So that is what Portia says कि मुझे अब डर लग रहा है, अब ये जो तुम्हारा confession है, जो तुमने अभी confess किया अपना love for me, I feel that confession is not true because you are speaking out of fear. Out of fear because you are under the pressure of torture. So तुम उस डर में you are frightened and so you are confessing that you are in love with me. Where men enforced to speak anything. क्यों? क्योंकि when men are upon rack, जब आदमियों को torture किया जाता है, when criminals are tortured and when people undergo so much torture and they are in so much agony and pain, तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी confess कर लेते. जब इतनी तकलीफ से कोई गुजरेगा, जब किसी को रैक में रखा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, तो तुम उससे जो कहोगे वो कन्फेस कर लेगा डर के मारे, अपनी जान बचाने के लिए. तो पोर्शिया कह रही है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है that you whatever you are saying and whatever confession you have made थोड़ी देर पहले, that is not a true one because you are under fear of torture. जो भी confession किया है तुमने, ये तुमने fear के चक्कर में किया है, इस वजह से I cannot trust. Bassanio, promise me life and I'll confess it. So
Bassanio says कि promise me my life. My life का मतलब क्या है यहाँ पे? That for Bassanio now Portia is his life. So you promise me that you will spare my life. You promise me that I will get my life. अब यहाँ पे obviously Bassanio literal meaning नहीं आएगा. Bassanio is not being murdered यहाँ पे. तो यहाँ पे my life का मतलब क्या है? Promise that I will get the love of my life and I will confess the truth. Means you say that you promise that my love will be spared, the love of my life will be spared, and I will confess the truth. Portia says, well, then confess. So in that case, I would say that you first make a confession and then your life will be granted. Bassanio, confess and love. So Bassanio takes it to be confess and love. Bassanio says, yes, so I want to make a confession and then keep on loving. Had been the very sum of my confession. So this was the gist, this was the crux, this was the very basis of my confession. So these two words form the very basis of my confession. कौन से दो words? Confess and love. Means I am standing here and confessing my love for you. Till now they have not confessed their love for each other. So that is what Bassanio says कि अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ, मैंने जितना भी बोला है उसके दो words जो हैं, दो words क्या हैं? They form the crux and the basis of everything. And कौन से दो words हैं? Confess and love. Means I am actually making a confession of my love to you. Oh happy torment when my torturer doth teach me answers for living. देखा वो torture भी happy हो जाता है, वो pain, वो suffering भी it's very happy. जब जो torture कर रहा है वही हमको ये आंसर दे कि मैं कैसे खुद को बचाऊं. Deliverance means to save. Means that torture also becomes something very enjoyable and बहुत ही happiness देने वाली चीज हो जाती है जब जो कि torture कर रहा है, जो कि torturer है. Torment means torture. So जब torture देने वाला ही मुझको ये आंसर्स भी देने लगे कि मैं कैसे अपने आप को इस टॉर्चर से बचा पाऊंगा. जब वही टॉर्चर देने वाला ही हमको बचने के रास्ते बताने लगे तो टॉर्चर भी क्या होता है, टॉर्चर जैसा नहीं लगता. पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट टॉर्चर ऑल्सो. बट लेट मी टू माय फॉर्चून एंड द कैस्केट. सो ही सेज नाउ वी हैव डन इनफ ऑफ द टॉकिंग. बहुत बातें हो गई, चलो मुझे कैस्केट्स के पास ले चलो एंड लेट मी टेस्ट माय फॉर्चून. I want to try my luck. I want to choose the casket and try my luck. Curtains drawn from before the casket. So now what happens? Curtains हटा दिए जाते हैं. So and then there is a casket in front of. Away then. I am locked in one of them. So now the curtains are drawn and caskets are there in front of. Caskets are placed in front of Bassanio. Bassanio is able to see the caskets. So Portia now says that away then. Away then means then go, move ahead. I am locked in one of them. In one of these caskets, I am locked. I am locked means my picture is there. My portrait is locked in one of these caskets. And you can go ahead and make a choice. If you do love me, you will find me. If your love is true, if your love is pure, then you will definitely be able to find the right casket. अगर तुम seriously truly love करते हो मुझको तो तुमको सही casket choose करने में कोई दिक्कत नहीं. Nerissa and the rest stand all aloof. Then she instructs Nerissa and the other attendants जो हैं वहाँ पे servants जो हैं उसके, she says stand all aloof. Stand all aloof means all of you stand out of the way. इन सब लोग दूर खड़े हो जाओ. Let music sound while he does make his choice. जब ये choose करने जाए, when Bassanio goes to make a choice of the casket, तब music बजनी चाहिए. This is the instruction which is given by Portia. Then if he lose, he makes a swan like. क्यों music होनी चाहिए? See, if you pay attention, जब Prince of Morocco and Prince of Aragon casket choose करने आए थे तब कोई music play नहीं हुई थी. Was there any music played at that time when they were making a choice? No. यहाँ पे music, when Bassanio is going to make a choice of the casket, then music is played, right? Then Portia instructs Sir Nerissa that I want some music.
Then if he lose, he makes a swan like him. तब क्या होगा? Why does Portia want the music? She says कि अगर इसने गलत choose किया तो he makes a swan like him. Elizabethans का मानना था कि स्वान जो है सिर्फ एक बार गाना गाती है just before it dies. That may not be the truth, but Elizabethans believe, means the people of that era, the people of the Elizabethan era, they believed कि swan sings only once in its lifetime, and that is the time just before it is about to die, right? So that is why she says, then if he lose, he makes a swan like end. So that will be his last time. After this, that will be the end of their relationship. That will be the end of their love. So that is why Portia says कि गाना बजना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये लूज करता है, अगर ये सही कैस्केट नहीं चूज कर पाता, तो he may die like a swan. जैसे स्वान जो होती है सिर्फ एक बार गाना गा के after that it dies, वैसे ही he should die. He should die means the love should die. Fading in music. उसी म्यूजिक में फेड करता हुआ, उसी म्यूजिक में डिम होता हुआ हो जाए. Then the comparison may stand more proper. My eye shall be the stream. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है स्वान का सिंगिंग बिफोर द डेथ, ये ज्यादा प्रॉपर साउंड करेगा. फेडिंग म्यूजिक वाला क्यों ज्यादा प्रॉपर साउंड करेगा? शैल बी may stand more proper. तब ये ज्यादा प्रॉपर लगेगा, ये ज्यादा सही लगेगा. क्यों? क्योंकि मेरी my eye shall be the stream and watery deathbed. क्योंकि obviously Portia will cry. अगर बसानियो जो है गलत कास्केट चूज करता है तो Portia will be sad and there will be tears flowing from her eyes. तो वो वही कह रही है कि तब ये सॉन्ग ज्यादा प्रॉपर साउंड करेगा, इसलिए क्योंकि मेरी आंखों के जो आंसू हैं वो इसको क्या देंगे? डेथ बेड. That will be the death bed. जैसे स्वान जो है गाना गा के लास्ट टाइम इट drowns into the water, वैसे ही he will also drown into my tears like a swan. And watery deathbed, what? मेरे जो tears हैं वो इसको क्या दे देंगे? Watery deathbed दे देंगे. He will just die in my tears. He may win. और अगर ऐसा होता है कि वो जीत जाता है, if he doesn't lose, ये तो उसने बताया कि ये ऐसा फील होगा अगर वो लूज कर लेता है और वो सही कैस्केट नहीं चूज करता. He may win and what is music then? So then she says कि अगर वो सही कैस्केट चूज करता है, if he is able to make the right choice of the casket, then music कैसा होना चाहिए? Then music is even as the flourish when true subjects bow to a new crowned monarch. तब कैसा म्यूजिक होना चाहिए? बिल्कुल trumpets की तरीके से कि sound of the trumpets, that flourish of trumpets. और trumpets, you know, those are वो लंबे लंबे musical instruments होते हैं उस टाइप के. So normally you must have seen on television जब वो राजा महाराजा आते हैं तो that pipe sort of होते हैं टेढ़े मेढ़े से, तो वो क्या होते हैं? trumpets. So she says कि जब if he wins, by chance he doesn't lose and he wins, तब कैसा म्यूजिक चाहिए? तब ऐसा म्यूजिक होना चाहिए like the flourish. Flourish means like the sound of trumpet. जैसे खूब ढेर सारे trumpets बज रहे हैं. True subjects bow to a new crown monarch. और subjects means प्रजा. तो अब प्रजा क्या कर रही है? New crown monarch. Monarch means king. जैसे नया नया monarch crown हुआ है कोई, जैसे नया नया अभिषेक हुआ है किसी राजा का, और वो the whole कंट्री, जितने लोग हैं उसकी किंगडम में, वो सब क्या कर रहे हैं? उसको दे आर bowing their heads in front of him. उसके सामने सर झुका के उसको रिस्पेक्ट, रेवरेंस दे रहे हैं. उस तरीके का म्यूजिक बजना. Such it is as are those dulcet sound in the break. तब क्या होना चाहिए? See, this is important. वो क्या कह रही है? पहला उसने कहा if he wins, तो then कैसा साउंड होना चाहिए? The first it can be like the flourish of trumpets as displayed when the prince is when a person is crowned as a monarch or two subjects bow in front of him. दूसरा कैसा हो सकता है? Such as it is as are those dulcet sounds in the break of day. जैसे dulcet sound means बहुत ही sweet sound सवेरे सवेरे that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage. या ऐसी म्यूजिक होनी चाहिए
जो कि सवेरे सवेरे प्ले की जाती है इन द ईयर्स ऑफ द ब्राइडग्रूम, मींस जो लड़का जिसकी शादी हो रही है, दैट पर्सन हु इज अबाउट टू गेट मैरिड, ग्रूम की के कानों में जो सवेरे सवेरे म्यूजिक प्ले किया जाता है ऑन द डे ऑफ हिज मैरिज टू समन हिम टू मैरिज, मींस दैट म्यूजिक इज लाइक अ कॉल फॉर हिम. समन मींस कॉल, उसको म्यूजिक के थ्रू बुलाया जाता है, तो जगा के जो म्यूजिक तब प्ले की जाती है, सो दैट ही कैन get up from his sleep and he comes for his marriage. वो मैरिज की कॉल के लिए जो म्यूजिक प्ले की जाती है इन द अर्ली मॉर्निंग, ब्रेक ऑफ डे मींस इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम पे, टू कॉल हिम, creep into the dreaming bridegrooms here. Dreaming bridegrooms here means जो सो रहा है, जो लड़का भी सो रहा है and he is about to get married, उसके ears में जो म्यूजिक प्ले की जाती है in the early morning, so the sound should be of that music if Bassanio wins. Now he goes with no less presence but with much more love. So now she says that now he goes. देखो अब वो जा रहा है with no less present but with much more love. Presence means that he is going with a very handsome appearance, means उसके appearance में कोई कमी नहीं है, right? He is looking, look at him, he is looking so handsome when he is going to make the choice of the, okay, with no less present but with much more love. So with no less presence means कि he is going in such a manner, उसका look जो है इस वक्त बहुत ही handsome है, he is looking very handsome when he is going to make the choice but with much more love. लेकिन then young Alcides, Alcides is another word of Hercules, another word for Hercules, Hercules का दूसरा नाम है Alcides. So that is what Portia says, he is looking as handsome as Alcides, no less presence but with much more love than young Alcides. So Hercules was supposed to be a very handsome young man. So Portia is saying that Bassanio is not looking in any way less handsome than Alcides but with much more love. But क्या है कि he is filled with much more love in comparison to Alcides. Though he is very similar in his looks, though he is looking as handsome, उसका जो जितना handsome Alcides था उतना ही handsome Bassanio है, लेकिन Bassanio के अंदर एक चीज ज्यादा है and that is love. Means the love which Bassanio has for me is much more than Alcides has for the princess. Do you remember the story? Do you know the story? When he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy to the sea monster. So what happened in Troy? Troy is the name of the place. What happened in Troy? Troy में क्या हुआ था? Monster को एक virgin, एक maiden दी जाती थी, right? It was offered to the monster बचाने के लिए, Troy को बचाने के लिए there was an agreement between the monster and the people of Troy कि उसको जब तक एक virgin लड़की दी जाती रहेगी तब तक he will not harm the people there. So वही virgin tribute दी जाने वाली थी monster को, और Alcides ने क्या decide किया था कि Hercules decided कि वो क्या करेगा, he will fight the monster and he will not let any maiden die. कि अब ऐसा नहीं होगा, उसको जो ये लड़कियां दी जाती हैं, जो उसको maidens दी जाती हैं, unmarried लड़कियां दी जाती हैं, virgin लड़कियां दी जाती हैं, वो अब नहीं दी जाएंगी. This was something which Hercules decided. When he did redeem means saved. The virgin tribute, again, the tribute, the sacrifice which was, tribute here means the sacrifice which was being given, paid by the howling Troy. Howling Troy means crying. Means obviously जब वो देने जाते होंगे woman to be sacrificed, a maiden to be sacrificed, they will not be very happy about it. So as a sacrifice to the sea monster, I stand for sacrifice. So now Portia क्या कर रही है, Hercules की उस situation को अपनी situation से compare कर रही है. Means the situation जो अभी उसके घर में है उसको Portia compare कर रही है Hercules की उस situation को when he tried to save that maiden from the sea monster, right?
the maiden who was being offered as a sacrifice to the sea monster, right? बलि के तौर पे और ट्रिब्यूट के तौर पे वो जो दी जा रही थी मेडन, उसको कैसे हरक्यूलिस ने बचाया था। तो इस पूरी सिचुएशन को पोर्शिया ने कंपेयर किया है जो उसके रूम का इस वक्त सीन है। कैसे? she says I stand for sacrifice, means I am the maiden who is about to be sacrificed। मेरी सिचुएशन किससे सिमिलर है? उस मेडन से जिसको कि बलि के लिए दिया जा रहा था to that monster। the rest aloof are the Dardanian wives। बाकी जो यहाँ पे खड़े हैं मीन्स नेरिसा एंड अदर अटेंडेंट्स जो खड़े हैं, बाकी और जो हैं वो सब क्या हैं? डार्डेनियन वाइफ्स हैं। डार्डेनियन वाइफ्स मीन्स वाइफ्स ऑफ ट्रॉय, ट्रोजन वाइफ्स जो हैं, जो वहां की और विमेन थी वो है, राइट? वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं? वो डार्डेनियन वाइफ्स का, मीन्स जो ट्रोजन की अदर विमेन थी, वाइफ्स थी, उनका रोल प्ले कर रहे हैं। With beard visages come forth to view the issue of the expert। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आए हैं with their visages, means इनके सबके चेहरे क्या हैं? When you cry a lot तो क्या होता है? The tears they dry up on your face और वो patches टाइप के बन जाते हैं। So bleared means bleared visages means वही tearful faces, जो चेहरे एकदम उनके आंसुओं से भरे हुए चेहरे हैं, जो टीयर से भरे हुए चेहरे हैं, वो लेके come forth to view the issue of the expert। वो यहाँ पे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, ये जो हरक्यूलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन है, जैसे वो रेस्क्यू करेगा इसको फ्रॉम बीइंग गिवन एज अ ट्रिब्यूट, सी मॉन्स्टर को मार के कैसे बचाएगा, ये पूरा जो है, ये पूरा एक्सप्लॉइट, ये पूरा जो ऑपरेशन है, ये पूरा जो फाइट है, उसको यहाँ विटनेस करने के लिए आए हैं। मीन्स ये सारे के सारे उसको जो वहाँ देखने के लिए आए हैं। वो उसका रोल कौन प्ले कर रही है इस सिचुएशन में? नेरिसा एंड दी अदर्स, वो हरक्यूलिस। एंड हु इज द हरक्यूलिस इन पोर्शिया सिचुएशन? यहाँ पे हरक्यूलिस कौन है? यहाँ पे हरक्यूलिस है बेसानियो। सो पोर्शिया सेज गो हरक्यूलिस, लिव दाउ आई लिव। लिव दाउ का मतलब क्या है? इसी बेसानियो इज नॉट अबाउट टू डाई। हरक्यूलिस के केस में डेथ सामने खड़ी थी बिकॉज ही वाज गोइंग टू फाइट अ सी मॉन्स्टर, बट यहाँ पे बेसानियो मरने नहीं वाला है, राइट? यहाँ पे मतलब क्या है? succeed in the making a choice of the right casket or fail in making a choice of the right casket, ये सिचुएशन। सो पोर्शिया कह रही है गो हरक्यूलिस, जाओ हरक्यूलिस जाओ। लिव दाउ आई लिव मींस यहाँ पे लिव दाउ का मतलब क्या है? इफ यू सक्सीड, अगर तुमको सक्सेस मिलती है, इफ यू आर सक्सेसफुल, आई लिव मींस देन आई विल आल्सो बी सक्सेसफुल बिकॉज बोथ लव ईच अदर। सो अगर एक सक्सेसफुल होगा तो दोनों की सक्सेस उसी पे तो डिपेंड करेगी। मींस success or failure of Portia depends upon Bassanio now, like the way जैसा हरक्यूलिस के संग था, सक्सेस और फेलियर उस मेनिन का किस पे डिपेंड करता था? हरक्यूलिस पे। अगर वो मॉन्स्टर को मार देगा तो उस लड़की की भी जीत हो जाएगी, शी विल बी एबल टू लिव। अगर वो नहीं मार पाया, खुद मर गया, तो क्या होगा? वो भी जाएगी, शी विल आल्सो डाई। सो दैट इज व्हाट पोर्शिया इज सेइंग, लिव दाउ, दाउ मीन्स यू, अगर तुम बचते हो, अगर तुम ये सक्सीड होते हो तो आई लिव, देन आई विल आल्सो लिव, देन आई विल आल्सो बी सक्सेसफुल विद much more dismay I view the fight and thou that makest the fight। सो मैं तुमसे भी कहीं कहीं ज्यादा एंजाइटी के साथ, कहीं कहीं ज्यादा नर्वसनेस के साथ, मीन्स तुम तो जा रहे हो चॉइस करने, लेकिन ऑब्वियसली यू विल बी एंग्शियस, यू विल बी नर्वस, तुम्हारे अंदर तो घबराहट होगी, तुम्हारे अंदर तो टेंशन होगा ही होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक चॉइस ऑफ द कास्केट। बट तुमसे भी कहीं ज्यादा एंजाइटी, कहीं ज्यादा एंग्शियस, कहीं ज्यादा नर्वस इस वक्त मैं आई व्यू द फाइट। हालांकि आई एम जस्ट द पर्सन हु इज व्यूइंग द फाइट, आई एम जस्ट द पर्सन हु इज विटनेसिंग द सीन। ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम चॉइस ऑफ कैस्केट करने जा रहे हो, ये कर तुम रहे हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा टेंशन किसको है? तुमसे भी ज्यादा टेंशन मुझे है। When I am just viewing it, I am just looking at it. Then thou that makest the fray. Fray means yeah, fight. जो लड़ने जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा एंग्शियस कौन है? जो देख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखने वाला, दैट इज पोर्शिया, उसकी डेस्टिनी किस पे निर्भर करती है? उसकी डेस्टिनी किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द पर्सन हु इज making the fight or upon the person who is making the choice। पोर्शिया के केस में कौन? बसानियो। क्लियर?
कोई problem? Okay. नहीं मैम. Then fine, we'll Hi, ma'am. continue on the next